ہائے ہیلو آداب السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں آن لائن بزنس بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس آن لائن بزنس میں، آن لائن کرنسی میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس میں کما لیتے ہیں، تو بہت ساروں کا اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، بہت لوگوں کا اس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور اس میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میرا بھی خود کا نقصان ہوا ہے، میں نے بھی انویسٹ کیا تھا آن لائن کرنسی میں، تو مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ حالانکہ اگر میں تھوڑی سی محنت کر لیتا تو شاید کچھ مل جاتا، تھوڑی سی نہیں بلکہ تھوڑی سی اور زیادہ، کیونکہ تھوڑی سی تو میں نے کر لی تھی۔ تو خیر، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ کون کتنا لگا رہا ہے، کون کتنا کما رہا ہے، یا پھر بزنس کیا ہے، کرپٹو کرنسی کیا ہے۔ ہاں، کرپٹو کرنسی کیا ہے، اس کو لے کر کے یہ ویڈیو ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وہ صحیح ہے، غلط ہے، جائز ناجائز، یا حلال ہے حرام ہے۔ اس چیز کا ہمیں پوری طریقے سے معلوم ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے اپنے بڑے بزرگوں سے، یا پھر اپنے محلے میں، یا پھر اپنے اعتراف میں کوئی ایسا ہو جو ہمیں بتا سکے پوری طرح سے کہ کیا مطلب جو ہم بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، غلط ہے، جائز ناجائز۔ تو یہ ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ اہم چیز ہے، حلال حرام اس کا ہمیں بخوبی پتہ ہونا چاہیے۔ خیر، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی مولانا طارق مسعود کی، جس میں وہ ایک اچھی خاصی شخصیت سے معلوم کر رہے ہیں کہ آن لائن کرنسی میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے بہت تفصیل کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں اس ویڈیو کو، اور آپ بھی اس چیز کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ آن لائن کرنسی میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا ہے۔ حالانکہ اگر آپ انویسٹ سوری حالانکہ اگر آپ آن لائن بزنس نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار آن لائن بزنس کر رہا ہو، تو آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے آپ کے کہنے سے کوئی رائے راست پر آ جائے۔ تو بنا کسی دیری کے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے فرسٹ ٹائم رابطہ جو ہوا تھا، جو میں آپ تک پہنچا، تو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، کیونکہ ایز اے مفتی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم سے جی کرپٹو کرنسی کیا ہے، حلال ہے حرام ہے۔ ظاہر ہے علماء جب کوئی تحقیق کریں گے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے رابطہ کریں گے۔ تو ان ماہرین سے جب میرا رابطہ ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جو صورتحال انہوں نے بتائی تھی نا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، تو اسی کے مطابق بہت سے علماء نے یہاں فتویٰ دیا، اور میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ یہ جائز ہے۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں، اور کرپٹو کرنسی میں آپ کی بہت آپ ایکسپرٹ ہیں، اور باقاعدہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کو مختلف جگہوں پہ بھیجا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، ماشاء اللہ۔ تو آپ سے جب میرا رابطہ ہوا، آپ نے مجھے بتایا کہ نہیں جی اس میں جوئے کی شکل ہے، اور پھر جی اسی رابطے کے بعد میں نے اپنا فتوے سے بھی میں نے رجوع کیا۔ ذرا آپ ڈیٹیل سے آج بتائیں گے، کرپٹو کرنسی ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، اب کروڑوں روپے لوگوں نے کمائے ہیں، اور چند ماہ پہلے تک ہر آدمی کی زبان پر کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی کرپٹو کرنسی۔ تو ذرا اس کے بارے میں آپ اویئر کریں۔ ایک تو آپ کی اس میں مہارت کتنی ہے، تھوڑا سا اس کو بھی آپ وضاحت سے بیان کریں، تاکہ جو بھی آپ بات کہیں تو لوگوں کو اس پہ اطمینان ہو کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے یہ نالج لے رہے ہیں، اور پھر اس کی کیا یہ جوا ہے، یا یعنی آپ تھوڑا سا آسان زبان میں، جیسے میں ڈاکٹروں سے انٹرویو لیتا ہوں تو وہ اتنی ٹرم ایسی استعمال کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی بہت آسان اور دیسی سٹائل میں تھوڑا سا کرپٹو کرنسی کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہے کیا بلا یہ۔ دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کمپیوٹر سائنس میں دنیا کے بہترین سائنسدانوں میں میرا شمار ہوتا ہے، اور کمپیوٹر سائنس میرا شعبہ ہے۔ اس شعبے میں پچھلے 10-15 سال سے کام کر رہا ہوں، جی اور میری تحقیق جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ تو الحمدللہ پکی رکھی بات ہے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں سے، کمپیوٹر سائنٹسٹ جو ہیں، اور میں سائنسدان کہہ رہا ہوں، ان سے جب آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ کنفرم کر سکتے ہیں، آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں۔ میں خود اس وقت دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اور سائنٹسٹ کو لیڈ کر رہا ہوں مختلف پروجیکٹس کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے، میں خود لیکچرر ہوں، مگر میرے ماشاء ساتھ اللہ۔ جو کام کرتے ہیں یا میرے انڈر جو کام کرتے ہیں وہ فل پروفیسر ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے اندر، اور وہ کام کرتے ہیں۔ یہ تو ایک جنرل جو ہے ڈسکرپشن ہو گئی۔ جی جی جہاں تک کرپٹو کرنسی کی بات ہے، تو کرپٹو کرنسی کی جو بنیاد ہے، کرپٹو کرنسی جس پہ بنتی ہے، کرپٹو کرنسی ہو، میٹاورس ہو، این ایف ٹی ہو، ڈی سینٹرلائز فائنانس ہو،
या और इससे मिलती जुलती डिजिटल प्रोडक्ट्स हों, वो सारी ब्लॉकचेन पे बनती हैं। तो मैं ब्लॉकचेन का एक्सपर्ट हूँ, और ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की जिस पे ये सारी चीज़ें बनती हैं। जी तो ब्लॉकचेन पे मैं पिछले कई सालों से तदरीस कर रहा हूँ, यहाँ पे आयरलैंड के अंदर पढ़ा रहा हूँ। मेरे ब्लॉकचेन पे जो तहकीकी मकाले हैं वो दुनिया के बेहतरीन तहकीकी मकाले माने जाते हैं। माशाल्लाह। और मैंने इस पे एक टेक्स्ट बुक लिखी है जो कि बाकायदा यहाँ पे मास्टर्स के निसाब का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। इसके अलावा मैं 2 PhD स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक पे, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी और इनसे मिलते जुलते टॉपिक पे PhD करवा चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया से, और माशाल्लाह। कई मेरे साथ स्टूडेंट्स PhD कर रहे हैं इस टॉपिक पे। तो ये सिर्फ एक टॉपिक है मेरा, क्योंकि मैंने बताया कि दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों में शुमार होता है, तो मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे काम करता हूँ। जी अब ये तो बैकग्राउंड हो गया, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी कि मैं ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी का माहिर हूँ। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पे एक डिजिटल करेंसी है जो कि अपने चलने में कंप्यूटर की मोहताज है, यानी अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना हो तो ये काम नहीं कर सकती। इससे पहले ये समझ लीजिए कि ब्लॉकचेन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम एदाद व शुमार या डाटा को सेव करते हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है डाटा को स्टोर करने के लिए, जी जी और इसके लिए आपको डाटा को सेव करने के लिए किसी सेंट्रल सर्वर या सेंट्रल एंटिटी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको मैंने जैसे बताया कि ये डिजिटल करेंसी है, और इसको जब पहली मरतबा शुरुआत की गई इसकी 2008 में इसका वाइट पेपर आया, 2009 में शुरुआत में इसको लॉन्च किया गया, तो ये एज अ पेमेंट सिस्टम के तौर पे आया, और इसके बनाने वालों ने ये दावा किए कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो कि आलमी माशी इदारों की जो अजारादारी है उसको ख़त्म करेगा, डॉलर की अजारादारी को ख़त्म करेगा, और ये हमें बैंकों पर हमारा इन्हिसार या सूदी बैंकारी निज़ाम पे इन्हिसार को ख़त्म करेगा। जी और जो जिस तरीके से हमें मैनिपुलेट कर दिया जाता है माशी निज़ाम को, जो गरीब ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, उनसे हमें निजात देगा। तो ये दावे की हद तक तो दुरुस्त था, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें साइंसी तौर पे गलत साबित हुई हैं। अच्छा, अब ये जो मैं सारी बातें कह रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, ये पूरी दुनिया के जो आलमी माशी माहिरीन हैं और साइंसदान हैं, ये उनकी रिपोर्टेड तहकीकें हैं, जी और उसमें ये उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। जी अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये जो डिजिटल करेंसी है, ये इसके एक तो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं, साइंटिफिकली चीज़ें हैं, और एक इसकी वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे मुफ्तियान इकराम इसका फैसला कर सकते हैं, जवाज़ और अदम जवाज़ का। तो मैं दोनों पे आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये एक यानी अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो एक करेंसी इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। तो ये करेंसी नहीं है। करेंसी की 3 सिफात होती हैं। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी आला मुबादला के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाए। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसके जरिए से आप कदर को स्टोर करते हैं। जी जी और यूनिट ऑफ अकाउंट, इसके जरिए से आप चीज़ों की कदर नापते हैं। ये करेंसी की 3 बुनियादी सिफात हैं। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, ये तीनों सिफात साइंटिफिकली इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज़ नहीं होता। बड़े बड़े साइंसदानों ने तहकीक करके बता दिया है। नहीं, क्यों यूज़ नहीं होता भाई? आपने कोई प्लॉट खरीदना है तो क्रिप्टो करेंसी उसमें जो लोग कहते हैं वो इस्तेमाल हो रही है, जैसे ये काम करेंसी इस्तेमाल होती है, तो एज ए करेंसी का मतलब कि आला मुबादला है ना, कि जिसके एवज में कुछ खरीदा जाए। एक तो माशाल्लाह फ़िक़्ह की इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपने कुदूरी हिदाया वगैरह भी पढ़ी हुई है, तो कुछ शुद्ध रही है फ़िक़्ह से आपकी? जी, मुफ्तियान इकराम से वैसे पढ़ी है, बाज़ाब्ता तौर पे नहीं पढ़ा। जैसे फ़िक़्हुल बुयू हज़रत शेखुल इस्लाम की है, उसका तर्जुमा पढ़ा है, और दूसरी कुतुब पढ़ी हैं इंफरादी तौर पे। क्योंकि जो आपने करेंसी की तारीफ़ की है ना, ये तो उलमा किराम जानते हैं ना करेंसी की डेफिनेशन, वो बिल्कुल आपने वही तारीफ़ की है जो उलमा और मुफ्तियान किराम करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने माशाल्लाह कुछ फ़िक़्ह से भी आपको मुनासबत है। हाँ, तो मैं ऐसा कर रहा था कि आला मुबादला, ये मैं सब लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये जो इश्कालात होंगे ना वो क्लियर हो जाए। तो आला मुबादला तो है, वो कहते हैं यार क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हमने ये भी ख़रीदा। तो लोगों के फ़र्ज़ करने से जब डॉलर बन सकता है तो वो हकीकत में कागज़ ना, आप चाहें तो उसको किश्ती बना के पानी में चलाएं, हवा में उड़ाएं। तो जब एक चीज़ डॉलर को गवर्नमेंट के कहने से लोगों ने डॉलर मान लिया, रुपये को गवर्नमेंट के कहने से लोगों ने रुपया मान लिया, तो असल तो ये लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। सही बात। तो एक डिजिटल करेंसी को लोगों ने एक आला मुबादला मान लिया, तो इसमें मुबशिर साहब को क्यों, क्या इश्काल हो रहा है जनाब डॉक्टर मुबशिर साहब? ये इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, इसी तरीके से जब इकोनॉमिस्ट ने देखा
साइंसदानों ने देखा कि क्रिप्टो करेंसी क्या आला मुबादला के तौर पर इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही, तो उनको ये पता चला कि एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आला मुबादला के तौर पर इसका इस्तेमाल 2% या 3% है। यानी पूरी ट्रांजेक्शन्स के अंदर 2% या 3%। बाकी किस चीज़ में इस्तेमाल है? बाकी इसका इस्तेमाल ये है कि आप शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने अभी लगाया, अभी ये खरीदा और अभी बेच दिया और पैसे कमा लिए। और कुछ लोग तकरीबन 33 या 34% लोगों ने ये खरीद के रख लिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट इस पे यानी आपकी बात का हासिल ये निकला कि एसेट्स या असासा तो हो नहीं सकती है, ज़ाहिर है ये कोई इस्तेमाल की चीज़ तो है नहीं, तो इसको हम एज ए करेंसी ही अगर मानेंगे, इसकी कोई फ़िकी तकीफ जो जवाज़ की होगी वो करेंसी ही होगी, और करेंसी के तौर पे 2% इस्तेमाल हो रहा है, लोग इसको एसेट ही के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने प्लॉट ख़रीदना हो तो दुनिया में जहाँ भी प्लॉटों का बिजनेस हो रहा है तो इसके ज़रिए हो रहा है, इसके ज़रिए इसी का बिजनेस हो रहा है, ठीक है ना। ये जुए की एक शक्ल बन जाती है कि ख़रीदो, जैसी महंगा होगा बेच दो जी। यहाँ पे 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी खुद बना सकते हैं, और कई क्रिप्टो करेंसीज पैसे लेके गायब हो गई हैं और आप पूछ ही नहीं सकते। तो यानी ये कि इजारादारी इसमें भी है, जो हमारी जो आम करेंसी है उसकी इजारादारी ऐसी है जिसमें कोई ना कोई जिम्मेदार है जिससे आप पूछ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जो इजारादारी है वो है, उसमें अगर जो करेंसी बनाने वाला मार्केट से शॉर्ट हो जाए तो करेंसी भी मार्केट से शॉर्ट हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें शरई तौर पे इसमें हो ये रहा है कि या तो हम ये कह दें कि भाई फुका इकराम के बे और शरा के जो अहकाम है ना वो अब हम नहीं मानते, अब ज़माना तरक्की कर गया है और इसमें बाया भी मबी भी मादूम है, समन भी मादूम है और मादूम की बे हो रही है। यानी मैं साइंटिफिकली आपको ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी हिस्सी तौर पे फिजिकली तौर पे तो मौजूद ही नहीं है। फिर मैं ये दावा कर रहा हूँ साइंटिफिकली कि ये डिजिटली तौर पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। देखें डिजिटली अगर आप तस्वीर खींचें किसी की और फिर व्हाट्सएप पे भेज दें तो डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगी ना। मगर ये क्रिप्टो करेंसी डिजिटली भी एग्जिस्ट नहीं करती साइंटिफिकली स्पीकिंग। जब पहली मतलब बिटकॉइन बना क्या हुआ 2009 में, एक बंदे ने सोचा कि यार मेरे पास बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए और उसको खाते के अंदर लेजर के अंदर लिख लिया और फिर दूसरे बंदे का नाम लिख लिया, तीसरे बंदे का नाम लिख लिया। फिर 2 साल तक इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कदर ही नहीं थी। इंट्रांसिक वैल्यू तो थी नहीं मगर एक्सट्रांसिक वैल्यू भी नहीं थी। फिर उसको क्रिएट करने के लिए मसनूई तौर पे उसमें तकव्वुम पैदा किया गया और 2 साल बाद तकव्वुम यानी लोग थोड़ा इस इस्तिलाह से नहीं, यानी वैल्यू पैदा की गई उसकी। जी आर्टिफिशियली। तो अब आप ये देख लें, और वो जो 2 साल का अरसा है उसमें 64 लोग हैं जिनके पास सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी थी। यानी आप 64 लोगों के हाथ में अपनी सारी जो है ना अजारादारी दे रहे हैं, जो कि बड़े। और उसके बाद फिर ये इन्होंने इसके अंदर फर्दर इसकी कदर को बढ़ाया और कदर को बढ़ाने के बाद उसका मंशा ये था कि लोगों से पैसे बटोरे जाएं और अभी तक वो सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि सबसे पहले तो बुनियाद तो ये है कि जुआ और सट्टेबाजी की तो बदतरीन शक्ल है ये, मगर इसमें बुनियादी नकाइस हैं जो कि शरीयत बेओ शरा के बयान करती है। मसलन इसमें जो मबी है वो मादूम है, यानी जो बेचने वाली चीज़ है। इसमें जो समन है यानी जिससे खरीदा जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी से खरीदेंगे तो शुरू में तो वो भी मादूम है और मादूम की बे हो नहीं सकती। इसके अलावा इसमें जो है हमें मालूम भी नहीं होता, इसमें गरर कसीर भी है। यानी जब नई करेंसी हम बनाते हैं तो इसमें गरर कसीर भी है, इसमें बेतहाशा शरई तौर पे नकाइस हैं। यानी अगर हम ये कहते हैं गरर का मतलब मैं लोगों को थोड़ा सा बता दूं, आप माशाल्लाह उलमा वाली इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो ये था कि आप साइंस की गाड़ी इस्तिलाहात इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप तो मौलानाओं की भी इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं माशाल्लाह। तो गरर का मतलब गैर यकीनी बे, यानी गैर यकीनी चीज़ है कि उसकी वैल्यू एकदम ऊपर जा सकती है, एकदम धड़ाम से नीचे आ सकती है। जैसे आप तालाब में मछलियों की बै कर रहे होते हैं ना कि जितनी मछलियाँ इसके अंदर है मैंने खरीदी, अब क्या पता एक निकले 100 निकले। तो शरीयत में ऐसी खरीदो फरोख्त को हराम करार दिया गया। अच्छा, मैं क्रिप्टो करेंसी की तरफ थोड़ी देर में दोबारा आता हूँ, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी के जो मुहिब्बीन और आशिकीन हैं उन तक मैं आपका पैगाम पहुँचाना चाह रहा था। मैंने जो क्रिप्टो करेंसी के मुखालिफिन हैं उन तक तो उन साइंसदानों का पैगाम पहुँचा दिया है जो इसके हामी हैं। तो मैं चाह रहा था ज़रा मुखालिफिन का भी नज़रिया और थ्योरी सामने आए ना, और ज़ाहिर है आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो आपकी बात का मैं समझता हूँ ज़्यादा एतबार किया।
بہت ساری چیزیں دوستوں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحیح ہے غلط ہے. ہم کیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کرے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ صحیح ہے، لیکن جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو خیر آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ کو اب پتہ چلی گیا ہے کہ آن لائن کرنسی میں انویسٹ کرنا کیسا ہے. تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس بات پر عمل کریں. خیر اگر آپ اس بزنس کو کر رہے ہیں، آن لائن بزنس کو کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تسلی کے لیے کسی بھی اپنے بڑے بزرگوں سے پتہ کر لیں. اچھی بات ہے، کیونکہ حرام حلال کا مسئلہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ ضروری چیز ہے. تو دوستوں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سپورٹ مجھے ملے. تو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.